स्टूडेंट्स, मैं दारा सिंह सीनियर लेक्चरर बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल रियासी से तो वीडियो लेक्चर में सबका स्वागत है। तो मेरा आज का टॉपिक है नाइट्रिक एसिड, प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन आल्सो फॉर्म टू ऑक्सी एसिड्स। These are nitrous acid HNO2 and nitric acid HNO3. Nitric acid is one of the important mineral acids to act as oxidizing agent. Nitrogen shows an oxidation state of positive 5 in nitric acid. Manufacture of nitric acid. Nitric acid is commonly manufactured by Ostwald process in which it is prepared from ammonia. The process involves the following steps. First step, converter. Ammonia is mixed with dust-free air in a ratio of 1:10 by volume, and mixture is passed through a converter made up of steel and packed with platinum gauge catalyst. The converter is heated electrically to about 1100 Kelvin when ammonia is oxidized to nitric oxide. The reaction is ammonia plus oxygen gives rise to nitric oxide plus water in presence of platinum as a catalyst and 1100 Kelvin temperature. The above reaction is exothermic and therefore the heat evolved in the reaction maintains the temperature and further heating is not required. Cooling pipes. The gases escaping from the converter are cooled to about 325 Kelvin with the help of cooling pipes. Oxidation chamber. The gases are then passed through a chamber called oxidation chamber where more of air is mixed. Nitric oxide is oxidized to nitrogen dioxide. Nitric oxide plus oxygen gives rise to nitrogen dioxide. Absorption tower. It is packed with acid-proof flint or quarter species. Nitrogen dioxide is then introduced in absorption tower. Water sprayed from the top dissolves nitrogen dioxide in the presence of oxygen to give about 60% nitric acid. NO2 plus water plus oxygen gives rise to ammonia. So this is flow chart diagram of Ostwald process, manufacture of nitric acid by Ostwald process. This is converter. It is called as converter. It is provided with platinum gas. Ammonia, ammonical air 1:10 रेशो में अमोनिया प्लस एयर इसमें डाली जाती है और उसके बाद इनको यहाँ से पास करके कूलर में डालते हैं थोड़ा ठंडा करने के लिए। यहाँ पे टेम्परेचर बड़ा हाई होता है, यहाँ पे इसको थोड़ा ठंडा किया जाता है। कूल करके इन गैसों को नेक्स्ट यहाँ पे डाले जाते हैं ऑक्सीडेशन चैम्बर। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन चैम्बर, जहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को यहाँ से आगे पास किया जाता है इस चैम्बर में। दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन टावर। ऑब्जर्वेशन टावर में ऊपर से वाटर की स्प्रे दी जाती है। वाटर की स्प्रे डालने से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी में सॉल्युबल होकर नाइट्रिक एसिड बना देती है HNO3 इन दी ऑब्जर्वेशन टावर में। तो नाइट्रिक एसिड को यहाँ से रिमूव किया जा सकता है। एसिड प्रूफ फ्लिंट, वेस्ट गैसेज यहाँ से बाहर निकल जाती हैं। दिस इज फ्लो चार्ट डायग्राम ऑफ द नाइट्रिक एसिड। Concentration of the acid. Dilute nitric acid is further concentrated by distilling it under reduced pressure
in prions of concentrated sulfuric acid to get about 98% acid. Properties of nitric acid क्या है? It is a colorless liquid. First property, it boils at 86 degree Celsius temperature पे and freezes to a white solid at 42 degree Celsius. Nitric acid is generally containing dissolved nitrogen dioxide and is called as fuming nitric acid. फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड हम नाइट्रिक एसिड को ही कहते हैं जब उसमें कुछ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सॉल्युबल होती है. केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिडिक कैरेक्टर, it is one of the strongest acid because it is highly ionized in aqueous solution. Nitric acid gives rise to water में H3O1 positive ion और NO3 1 active ion, hydronium ion और nitrate ions are formed. It turns blue litmus red. Blue litmus को red कर देता है. It forms salts with alkalis, carbonates and bicarbonates. अल्कली के साथ, कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ साल्ट बनाता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली है. नाइट्रिक एसिड गिव्स राइज टू सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर. ऐसे ही सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट है प्लस नाइट्रिक एसिड, सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड. एक्शन ऑन मेटल्स, एक्सेप्ट नोबल मेटल गोल्ड और प्लेटिनम को छोड़कर नाइट्रिक एसिड अटैक्स all metals, forming a variety of product. The products depends upon the nature of metal, the concentration of acid and temperature. First, metals that are more electropositive than hydrogen, जो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. In this case, nascent hydrogen is liberated, which further reduces nitric acid. M means any metal plus nitric acid, तो मेटल नाइट्रेट बनते जाएंगे. अगर ये सोडियम है तो सोडियम नाइट्रेट, अगर ये कैल्शियम है तो कैल्शियम नाइट्रेट, अगर ये मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड प्लस हाइड्रोजन. ऐसे ही नाइट्रिक एसिड प्लस हाइड्रोजन रिड्यूसिंग प्रोडक्ट बनेगा प्लस वाटर. यूजिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड फार्मिंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अगर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं तो इस कंपाउंड की जगह यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास जिंक नाइट्रेट इज फॉर्म्ड. जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड, जिंक नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर. यूजिंग डिल्यूट नाइट्रिक एसिड फॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड, अगर कंसनट्रेटेड नहीं है तो डिल्यूट नाइट्रिक एसिड है. जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड, जिंक नाइट्रेट तो बनना ही बनना है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जगह नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगा NO2 प्लस वाटर. Using very dilute nitric acid forms ammonium nitrate. Very dilute एसिड अगर हम इस्तेमाल करेंगे नाइट्रिक एसिड, जिंक प्लस वेरी डिल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव्स राइज टू जिंक नाइट्रेट. जिंक का साल्ट तो बनेगा, फिर उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट इज फॉर्म प्लस वाटर. Metals which are less electropositive than hydrogen, in this case nascent hydrogen is now liberated using concentrated nitric acid. अगर होगा concentrated nitric acid कॉपर के साथ रिएक्शन करके कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा. ऐसे ही वेरी डिल्यूट नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करेंगे तो कॉपर नाइट्रेट NO नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर बनता है. Action on noble metals. Noble metals like gold and platinum are not attacked by nitric acid. However, these metals are attacked by aqua regia. Aqua regia होता है 3 parts of concentrated HCl and 1 part of concentrated nitric acid forming their chlorides. Nitric acid plus HCl, this is aqua regia. NOCl is formed, nitrosyl chloride प्लस वाटर प्लस नेसेंट क्लोरीन, यानी कि क्लोरीन के एटम बनते हैं. द फ्री क्लोराइड अटैक्स गोल्ड प्लेटिनम एक्स्ट्रा. दिस इज गोल्ड प्लस क्लोरीन के एटम,
तो बन जाएगा गोल्ड क्लोराइड। ऐसे ही प्लेटिनम प्लस क्लोरीन के 4 एटम, प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड, यानी कि प्लेटिनम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। Oxidation of non-metals and compounds, nitric acid behave as a strong oxidizing agent. It has a tendency to form nascent oxygen as nitric acid gives rise to nitrogen dioxide plus water plus nascent oxygen. ऐसे ही नाइट्रिक एसिड अगर डिल्यूट होगा, डिल्यूट में नाइट्रिक ऑक्साइड, वाटर और 3 ऑक्सीजन के एटम बन जाएंगे। Therefore, nitric acid oxidizes many non-metal and compounds. It oxidizes sulfur to sulfuric acid. This is nitric acid. S8 sulfur का molecule 1/8 S8 means 1 atom of this sulfur. Sulfuric acid NO2 और वाटर बन जाएगा। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड प्लस फास्फोरस, फास्फोरस को ये चेंज कर देगा, फास्फोरिक एसिड में NO2 और वाटर बन जाएगा। It oxidizes carbon dioxide, कार्बन को कार्बन, इट ऑक्सीडाइजेज कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रिक एसिड प्लस कार्बन, कार्बन को बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी कंपाउंड सेम NO2 और वाटर हर एक में आता जाएगा। इट ऑक्सीडाइजेज आयोडीन एंड आयोडिक एसिड, आयोडीन का बनाएगा आयोडिक एसिड HiO3, NO2 और वाटर बनता जाएगा आगे। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज आर्सेनिक टू आर्सेनिक एसिड, AS आर्सेनिक को बनाएगा आर्सेनिक एसिड H3ASO4, बाकी सेम NO2 और वाटर बनेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स यानी कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड कंपाउंड को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देगा, NO2 वाटर और सल्फर। ऐसे ही H2S अगर हम कंसनट्रेटेड लेंगे, सल्फर अलग, NO2 और वाटर सेम। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट, दिस इज फेरस सल्फेट, इसमें आयरन 2 पॉजिटिव है। नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे आयरन 3 पॉजिटिव है, दिस इज फेरिक सल्फेट NO एंड वाटर। एक्शन ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड, this is C12H22O11 सुक्रोज प्लस नाइट्रिक एसिड, सुक्रोज को ऑक्सालिक एसिड में चेंज कर देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। नेक्स्ट, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट्स गिव बोरॉन ring test with iron 2 positive ions in the presence of concentrated sulfuric acid. This is based upon the tendency of iron 2 positive to reduce nitrates to nitric oxides, which reacts with iron 2 positive to form a brown colored complex. The test is usually performed by adding dilute sulfuric acid, ferrous sulfate, freshly prepared ferrous sulfate solution to an aqueous solution containing NO3 non-active ion, and then adding concentrated sulfuric acid slowly along the side of the test tube. A brown ring at the interface between the solution and sulfuric acid indicates the presence of nitrate ions. दिस इज Fe2 पॉजिटिव, एनी साल्ट से आ सकता है, जैसे फेरस क्लोराइड, फेरस ब्रोमाइड, फेरस सल्फेट, एनी फेरस साल्ट्स। नाइट्रेट आयन दैट मे बी HNO3 से आ सकता है, NaNO3 से आ सकता है, कैल्शियम नाइट्रेट से आ सकता है, H पॉजिटिव आयन्स वाटर से आ सकते हैं या थोड़े डिल्यूट एसिड से। NO बनेगा और आयरन 2 पॉजिटिव इज चेंज्ड इनटू आयरन 3 पॉजिटिव, यानी कि फेरस आयंस आर चेंज्ड इनटू फेरिक आयंस प्लस वाटर। तो फेरिक आयन NO के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी के साथ भी, तो एक ब्रोन कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारे पास। दिस इज कॉल्ड एज रिंग टेस्ट ऑफ द नाइट्रेट। ओके, थैंक्स।